ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਤੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ, 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਲਵਾਏ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਲੋਕਰ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਭੁੱਲਰ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 1000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ AQI ਲੈਵਲ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਦਨਾਮ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 90% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਗੁਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇਜੀ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ। ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ $1 ਲੱਖ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। ਰੋਹਤਾਂਗ ਸਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸਨੋਫਾਲ। ਵਧੀ ਠੰਡ। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ इस खास पेशकश दे नाल। जिक्र होवेगा मुहम्मद मुस्तफा दा। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਦਰਅਸਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ FIR ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ। ਇੱਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਕੀਲ ਅਖਤਰ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਿਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਲ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਅਕਿਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਿਲ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਕਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज़ बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफ़ी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के। ये इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या कभी आया मेरे घर। मैं कभी उसके घर के पूछ लो उससे क्या रिश्ता है। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा। बस इन 2 सवालों के जवाब लो, इन 2 सवालों के जवाब लो कि वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं हफ्ते 15 दिन कभी महीने में मलेरकोटला 2-3 दिन के लिए हम जाते हैं। बाकी हम पंचकुला में रहते हैं। तो कहाँ उसने देखा हमारा जुल्म मेरे बच्चे पे। बच्चा बच्चा होता है अपना, वो कितना भी माँ का बाप का कत्ल भी कर दे। बहुत सारे हादसे हुए। मेरी वाइफ की उसने 2008 में कुल्ला भी तोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को कहा, गिर गई थी। उसने कमरे में आग भी लगाई है। उसने एक नौबत ही आई, अपनी बीवी को मौत के कगार पे पहुंचा दिया जिस दिन हमने इसको थाने में भेजा। रात तक सब रोने लगे, ले आओ वापस, बच्चा है। ये बहुत किस्से हैं, लंबी 18 साल की हिस्ट्री है। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। आवाज़ बहुत कम है जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, लेकिन आवाज़ बहुत कम है। चलिए, मेरी टीम ज़रूर डेफिनेटली इसको देखेगी कि आवाज़ आप तक पहुंच जाए। मुस्तफा जी देखिए, फैमिली के लिए तो बहुत ही मुश्किल समय है दोनों तरफ से। नाउ इट इज जी, अब ऑडिबल है सर? जी जी, नाउ इज ओके। ओके, मैं सर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन देना। ठीक है सर, मैं स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जी। इस समय मुहम्मद मुस्तफा दी खुद ਦੀ ਸਥਿਤੀ कैसी है? एक पासे बहुत सीरियस एलिगेशंस ने, एक पासे बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर जा चुका है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं दुनिया का शायद सबसे बदकिस्मत बाप हूं जी, चूंकि बाप के लिए और जवान औलाद की मौत से बढ़ के कोई गम नहीं होता। जी, जिन्होंने इस मुसीबत को झेला है वो इसको बता सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बदकिस्मत क्यों हूं कि जब मुझे आई वॉज ग्रीविंग इन प्राइवेट, जी, मैंने परसों रात तक किसी की कॉल नहीं ली, ऑफलाइन था मैं। बड़े से बड़े अफसर, मेरे साथी, मेरे दोस्त, सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, दिल्ली से, पंजाब से, ब्यूरोक्रेट्स, आई वॉज ऑफलाइन। मेरा मैसेज आता था, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ बात कर सकूँ। जी, चूँकि मैं एक बाप हूँ आकिल का। जी, जब ये गंदी सियासत शुरू हुई, जी, एफआईआर दर्ज हुई, तो उस वक्त मुस्तफा ने फैसला किया कि बाप को सुला दे।
और ये एक जो गंदी सियासत हुई है, इससे लड़ना है। जी। तो मैंने कल सुबह 11 बजे बाप को सुला दिया। बाप को मारा नहीं है, बाप फिर जिंदा होगा। जी। अब एक सोल्जर मेरे अंदर, जो सोल्जर रहा है सारी उम्र, अब मुस्तफा का और सोल्जर बाहर है। मैं इन गंदी सियासत करने वालों को बेनकाब करके छोड़ूंगा। ठीक है। ये जो आदमी सामने है ना, ये तो फ्रंट है। जी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लीडर है, किसी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है। वो ये खेल खेल रहा है। मैं वक्त आने पे उसको भी पर्दाफाश करूंगा। आपके साथ क्यों सर, आपके साथ क्यों इस तरह की सियासत हो रही है? मैं बाकी चीजों के ऊपर बाद में आऊंगा। लोग पहले ये जानना चाहते होंगे कि क्या आप ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं? किसी भी पॉइंट को लेकर सियासत बोल दी जाती है, आपको क्यों, आपके साथ ये ऐसे एलिगेशन या आपके साथ सियासत हो रही है? मैं जिंदगी में विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। जो कायर होते हैं ना, विक्टिम कार्ड वो खेलते, मैं कायर नहीं हूं। मैं एक सिपाही हूं देश का। जी। मैं विक्टिम कार्ड जिंदगी में न कभी खेला न खेलूंगा। मैं तो जंग लड़ना जानता हूं। मैंने इस देश की लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाई हैं। गोलियों की छांव में मैंने अपना फर्ज अंजाम दिया है। ये नहीं है, मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा हूं। जी। मैं गुहार नहीं लगा रहा हूं कि मेरी मदद करो। बहुत लोगों के, बहुत अफसरों के फोन आ रहे, कोई पुलिस में मदद करें। अल्लाह गवाह है, पब्लिकली मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स के फोन आ रहे हैं। ठीक है। एनी हेल्प? आई सेड नो थैंक यू सर, नो सर थैंक यू, आई विल फाइट माई ओन वॉर। तो इट्स नॉट ए विक्टिम कार्ड, दिस इज ए डर्टी पॉलिटिक्स। जो शमसुद्दीन है ना, उसकी शक्ल देखी आपने? शक्ल देखी उसकी? मेरे घर में आकिल ने कुत्ता पाल रखा था, पिटबुल उसकी नस्ल है। तो मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। इसलिए तो इसको तो टुकड़ा डाल ले कोई, आप, मैं उसको 2000 रुपए दूंगा, आपके खिलाफ वीडियो बनवा देता हूं। मेरा बच्चा साइकोटिक हो चुका था, 18 साल की हिस्ट्री है जी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हर बाप बच्चे में कितनी भी कमी है उनको दबाता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। दबाता है ना, छिपाता है। ठीक है। जहां तक मेरे घर में छिपाना 100% मुमकिन नहीं था। चूंकि मेरे घर में 50 लोग होते हैं, सिक्योरिटी वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, तो वो सबको पता होता है। लेकिन बाप अपने मुंह से कभी नहीं कहता मेरा बच्चा बुरा है। ठीक है। मेरा बच्चा 2006 से लेके 2025 तक शिकार था, नशे का शिकार था। कभी वो निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था, कभी निकल आता था, फिर रिलैप्स हो जाता था। जी। तो ये सोल्जर की जुबान पे आज ये शब्द क्यों आ गए कि आप जो कंप्लेनेंट है, आप उसको कुत्ते के साथ कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उसकी शक्ल मिलती है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? सोल्जर का काम होता है कि जब मुसीबत आए, चाहे वो देश की लड़ाई लड़े, चाहे वो सच की लड़ाई लड़े, चाहे इंसाफ की लड़ाई लड़े। अब तो मैं अपनी जाती लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, उसकी शक्ल ही ऐसी है जी। उसकी आप यकीन करें, मेरे घर में पिटबुल कुत्ता था, उसके फोटो है, उससे मिला लें। इसकी शमसुद्दीन की शक्ल बिल्कुल पिटबुल कुत्ते से मिलती है। नहीं, चलिए देखिए, वो उनको तो शायद ये गाली लग रही होगी, आप बेशक ना कहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं शमसुद्दीन के ऊपर फोकस करता हूं, उसके बाद मैं वीडियो का जिक्र करूंगा। शमसुद्दीन की आपके साथ कोई ज्यादती दुश्मनी है? जाती दुश्मनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेना देना ही नहीं। फिर शमसुद्दीन आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया सर? पहली बात सुनिए मेरी, शमसुद्दीन का लेवल वो नहीं है जिससे मुस्तफा दुश्मनी करे। मुस्तफा की दोस्ती भी बड़े लोगों से है, मुस्तफा की दुश्मनी भी बड़े लोगों से है। तो वो उसका लेवल नहीं, मैं तो उसके बारे में सोचता भी नहीं हूं। मैंने बताया ना आपसे, वो भाड़े का टट्टू है, उसको पैसा चाहिए। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बताता हूं। ठीक है। ये जब जमीलुर रहमान साहब जो एमएलए हैं हमारे जी, उनके इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका पुराना साथी है, बहुत पुराना। तो इन्होंने उनका पीए बन बैठे। 3.5 साल में इतनी लूट मचाई, कोई
कोई डॉक्टर नहीं बचा, प्राइवेट अस्पताल नहीं बचा, सरकारी नहीं बचा, बीडीओ ऑफिस नहीं बचा, तहसील नहीं बची, कोई नशे बेचने म्यूनसिपलिटी के दफ्तर नहीं बचा जहां इसने फिरौती ना की हो। आप देखिए पूरे 117 हलकों में हाई कमांड ने, आम आदमी पार्टी के हाई कमांड ने शमसू को क्यों चुना निकलवाने के लिए? जब इसको 9 महीने पहले लात मार दी गई जमीलुर रहमान साहब ने जी, तो मैंने लोगों से पता किया भाई ये तो 24 घंटे साथ रहता था, ये तो रात में भी साथ सोते थे, साथ खाते थे, पीते थे। ठीक है। तो मुझे बताया गया, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वहां के, मेरे भी दोस्त हैं मलेरकोटले में जी, कि हाई कमांड का हुक्म था कि इस फिरौती गैंग को निकालो। उन्होंने इसको लात मारी, ये 9 महीने से अपने घर बैठा था। ठीक है। फिर इसको एक नया माई बाप मिल गया है, ये जिसके हाथों में खेल रहा है। ठीक है। अब आगे इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात करता हूं। नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी पर आ रहा हूं सर। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट है यहीं पे। देखिए, बहुत सारे लोग, जब आप बोल रहे हैं ना कि कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, तो वो फिर सुई घूम कर जाती है कि मलेरकोटला में कौन आम आदमी पार्टी का विधायक बन गया या कौन आपके खिलाफ इलेक्शन में, आपकी पत्नी के खिलाफ इलेक्शन में था। तो आप जमीलुर रहमान को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी का किसी का भी लेना देना नहीं इसमें, किसी भी लेवल पे। ठीक है, किसी भी लेवल पे। जी। चलिए, मैं अगले सवाल पर आता हूं। शमशुद्दीन क्या आपको अच्छे से जानता है या आप उसको जानते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे सारी दुनिया जानती है, मलेरकोटला पूरा जानता है। ठीक है। और मैं शमशुद्दीन को नहीं जानता। कितना जानता हूं मैं बताता हूं जी। ये 2018 या 2018 की बात है या 19 की जी। मैं डीजीपी ह्यूमन राइट्स कमीशन था। मेरे दफ्तर में मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्तों को लेके आया था मलेरकोटले से जी, और हाथ जोड़ के खड़ा था चपरासी की तरह, जो उसकी औकात है। मैंने पूछा ये कौन है? कहते ये शमशुद्दीन है। बताइए? कहते जी इसके ऊपर एक बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है, करोड़ों रुपए की। उसमें मदद चाहता है। मेरे जिंदगी में वसूल रहे हैं। मैं जब यारी दोस्ती बड़े लेवल पे करता हूं तो मैं बहुत अपने घर में, मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखता। मैं अपनी अलमारियों को साफ रखता हूं। ठीक है। मैंने इसको मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आप उससे पूछे अब 3 सवाल। आपसे 3 सवाल पूछूंगा जी। जिस दिन मैं 25 तारीख को मेरे बेटे की दुआ के लिए प्रेयर मीटिंग है जी मलेरकोटले में, 26 को मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। उसके बाद में एसआईटी जब बुलाएगी मैं जाऊंगा। ठीक है। मैं एसआईटी से एक गुजारिश करूंगा कि शमशुद्दीन को मेरे सामने बिठाओ, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। पहला मेरा सवाल होगा, उसने क्लेम किया मेरा पड़ोसी है जी। मेरा घर मलेरकोटले से 2 किलोमीटर दूर खेतों में है। मेरा पड़ोसी तो कोई है ही नहीं। ठीक है। तो इसने कहां से देख लिया मेरा परिवार मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को प्रताड़ित करता हुआ? दूसरा सवाल, इसने ये भी कहीं कहा है वो हमारा रिश्तेदार है जी। इससे पूछो भाई, 40 साल जो मैं पंजाब में हूँ, क्या रिश्तेदारी है मलेरकोटले वालों को बताए। ठीक है। मलेरकोटले से एक आदमी निकाले जो ये बता दे। जब रिश्तेदारी होती है, आप सुख में दुख में शामिल होते हो ना। बिल्कुल। मेरे साले की 2 साल पहले मेरे साले की डेथ हुई। जमीलुर रहमान भी वहां पे आया, हमारा सियासी मुखालिफ है। ठीक है। तो ये तो हमारा रिश्तेदार क्लेम कर रहा है, ये क्यों नहीं आया? कभी हम इसके घर गए, ये हमारे घर आया, ये जानता है मैं कौन हूं? तीसरा सवाल, इसने कहा कि मैं जो मेरी इन-लॉज है उनसे ताल्लुक थे जी, जो मेरी वाइफ पर रजिया सुल्ताना, उनकी फैमिली से जी। 38 साल से मैं उस घर में जाता हूं, मैंने तो कभी इसको वहां देखा नहीं। फिर ये कहता मेरी सास को फुप्पो कहता था। मेरी सास को मरे हुए 27 साल हो गए, ये तो कच्चे में था उस वक्त। मेरी सास को फुप्पो कब कहता था? ये फुप्पी मेरी सास कहां से बन गई? जब मेरी सास का इंतकाल हुआ 2000 में जी, मैं तो वहां 1 हफ्ता रहा था। ठीक है। ये वहां अफसोस करने क्यों नहीं आया फुप्पी की डेथ पे? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। अब अगला आखिरी सवाल जी। अभी एक बहुत बड़ी चैनल आई थी नेशनल मेरे पास सुबह जी। उन्होंने बताया कि दे हैव एक्सेस्ड ए स्टेटमेंट ऑफ शमशू।
जो उसने एसआईटी को कल दिया है। ठीक है। उसने कहा है कि आकिल को हमने कैद करके रखा था चंडीगढ़ में। उस कैद से ही उसने वो वीडियो रिलीज किया 19 मिनट का। ठीक है। ये फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाल लिया है। मेरा परिवार जी 23 तारीख से 28 तारीख तक आउट ऑफ चंडीगढ़ था। आउट ऑफ चंडीगढ़ था ऑफिशियली। चूंकि 24 तारीख को हमारे मलेरकोटले में सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी, ठीक है, और पीसीसी प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लुधियाना राजा वड़िंग जी, उनका प्रोग्राम था 24 को। ठीक है। 24 को था या 23 को था। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हम एक दिन पहले तैयारी करने के लिए गए, फिर हमने वो 2-4 दिन रहना था। अचानक दिल्ली से एक पैगाम आया। ठीक है। रजिया सुल्ताना जो टॉप बॉडी है पंजाब कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी मेंबर है। तो दिल्ली से पैगाम आया कि उसकी मीटिंग है जी। तो ये संडे में सीधी मेरी डॉटर और मेरी वाइफ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैं मलेरकोटले रुक गया, जो प्रोग्राम मलेरकोटले के थे। ठीक है। 27 तारीख की रात को ये शाम को वीडियो डालता है जी। मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मेरी बेटी ने देखा। उसने फौरन मुझे फोन किया जी। उसने आकिल को फोन करने की कोशिश की, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। बाद में उसने 2 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। तो उसमें से उस वीडियो के बेस पे 2 और वहां पे फिरौती गैंग के हिस्सेदार हैं, जो मैं फिरौती गैंग कहता हूं। 1000 मीटिंगों में मैंने कहा फिरौती गैंग ये जी। पिछले इलेक्शन में मेरे ऐलान होते थे कि मुझे फिरौती गैंग वालों के वोट नहीं चाहिए। मैं इस शहर में तालिबान कल्चर प्रमोट नहीं करूंगा। ये सेकुलर शहर है, ये गुलदस्ता है, सारी कौमें मिलकर रहती है, मैं तालिबानी राज यहाँ नहीं होने दूंगा। ठीक है। ठीक है जी। ये वही गैंग है। अब इन्होंने कहा इन्होंने जो कहा है कि ये कैद था जी। हम तो बाहर थे और मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहां पे मैं आज भी बैठा हूं यहाँ 1 हफ्ते से जी। मेरे घर पे अभी भी 10 लोग मौजूद हैं, जिनमें 6 लोग तो मेरे घर में काम करते हैं, अंदर सफाई का काम करते हैं। नहीं देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मेरे हो सकता है कि बहुत सारी बातें हैं, मेरे सवाल मुस्तफा जी आपको अच्छे ना लगे, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। मैं पूछूंगा। ये बहुत है। मैं आप मुझसे जो मर्जी पूछे। ये नहीं देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में अब ये बात आ रही होगी मुस्तफा जी। में घूमता था। जी जी, चलिए मैं आता हूं सर। जिस तरह से आपने बताया ना, बहुत सारे लोगों के जहन में दृश्यम मूवी घूम रही होगी कि वो हर चीज को बता रहे थे। ठीक है, मैं अगले सवाल पे आता हूं। शमशुद्दीन क्यों आपके पीछे पड़ा है? क्यों एफआईआर दर्ज करवा दिया आपके खिलाफ? सुनिए जी, सुनिए, मैंने मूवी नहीं देखी वो जी। और मूवी में लोग एक्टिंग करते हैं, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं एक्ट करता हूँ, एक्शन करता हूँ मैं। चलिए सर, आपके पुलिस अफसर रहा हूँ, सोल्जर, आप बहुत बड़े पद पर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्शन। मेरा सवाल है सर, मैं थोड़े सा टाइम आपका और लूंगा। शमशुद्दीन के पीछे आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा शख्स है, कुछ पैसों के लिए शमशुद्दीन ने कर दिया। सर लोग कह रहे होंगे कि एक डीजीपी लेवल का अधिकारी रहा हो, जिनकी पत्नी कैबिनेट मिनिस्टर रही हो, जो कांग्रेस में एक बड़ी नेता है, आपसे कुछ पैसों के लिए कोई क्यों पंगा ले लेगा सर? कहां किसी में इतनी हिम्मत की कुछ पैसों के लिए आपसे, आपकी फैमिली से पंगा ले ले? मैं कहता हूं ना, कुछ लोगों में अकल नहीं होती, अकल से पैदल होते हैं। वो जो है ना, छोटे से इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर देते हैं। जो राजनीतिक लोग होते हैं ना जी, खाली पैसे नहीं, उनको बहुत बड़ा नजारा दिखाते हैं, दुनिया दूर से दिखाते हैं कि आप हमारे करीब आ जाओगे, आप हमारे करीब आ जाओगे। जैसे आप लूटते रहे हो आम आदमी के एमएलए के साथ रह के, ठीक है, आप फिर पूरे पंजाब को लूटोगे, आप पूरे पंजाब को लूटोगे। ठीक है। वो लीडर जो है ना, वो बहुत बड़ा लीडर है पीछे। मैं नाम नहीं लूंगा किस पार्टी का, ये भी नहीं बताऊंगा। नहीं ले दीजिए सर नाम, इतना कुछ हो गया तो अब रह क्या गया? अब लीजिए ना नाम, बेनकाब कीजिए। आपके ऊपर इससे सीरियस एलिगेशंस क्या होंगे सर? मैं अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं उनका नाम? टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं हूं। अगला सवाल करें। नहीं, टीआरपी का जिक्र नहीं है सर, बहुत सीरियस एलिगेशंस है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी बात है, आपको क्लियरली पता उस शख्स का नाम, तो आने दीजिए सामने ना। शमशुद्दीन को हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? जो डायरेक्टली नाम होगा उससे सवाल पूछेंगे। सॉरी, उसका नाम मैं वहां लूंगा जहां लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। मेरा अगला सवाल सर, मैं एफआईआर के ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एफआईआर पढ़ी है जो शमशुद्दीन ने रिटर्न में दिया। ये कंप्लीटली वही बातें हैं जो आपके बेटे ने 27 तारीख को वीडियो में कही।
जी जी, तो मैं बिल्कुल वही है। जी मैं आपसे, आपने जिक्र किया कि 27 अगस्त को बेटे ने वीडियो बनाई, वो 2 घंटे रही, किसी ने डाउनलोड कर ली, सब ठीक है। लगभग 1.5 महीने बाद ये अनफॉर्चुनेट है कि आपके बेटे की डेथ हुई। इस इन बिटवीन आपने बात की कि जाके तुमने ये क्या बोल दिया और क्या एलिगेशंस लगा दिए, क्यों कर दिया ये? किससे बोल दिया? अपने बेटे से। क्या क्या किससे बात की? बेटे से क्यों नहीं बात करेंगे? मेरा बेटा साइकोटिक हो चुका था जी, उससे रात दिन बात करते थे हम लोग। मेरा बेटा साइकोटिक था। आप रजत शर्मा ने कल एक इसी केस में एक प्रोग्राम किया है, ठीक है। उस प्रोग्राम की आखिरी 7 मिनट सुन लें, आपको समझ में आ जाएगा साइकोटिक क्या है। मैं आपका टाइम नहीं जाया करना चाहता कि साइकोटिक क्या होता है, उसको पता नहीं होता कि दुनिया क्या है। वो चीजें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है